Hello student, class 9th SST, your chapter first. What is democracy? Why democracy? So now today's matter is a broader meaning of democracy. Democracy की जो है वो एक विस्तृत परिभाषा, ठीक है? So in this chapter we have considered the meaning of democracy in a limited and डिस्क्रिप्टिव सेंस. हमने इस पूरे चैप्टर में जो है वो डेमोक्रेसी की जो है वो एक लिमिटेड डेफिनेशन को भी हमने समझा और डेमोक्रेसी की जो है वो एक ब्रॉड जो डेफिनेशन है उसको भी समझा. कौन कौन से एलिमेंट डेमोक्रेसी के अंदर एसेंशियल्स हैं, कौन कौन सी कंडीशंस जो है, व्हाट आर द कंडीशन विच इज वेरी एसेंशियल टू बी अ नेशन एज अ डेमोक्रेटिक नेशन. So a democracy have a lot of features, clear? So a lot of conditions include in the democracy. If a particular country want to be a democratic country, then it has to fulfill all the needs, all the laws, all the constitutions, and it had a great amount of credit in the public. So that in this condition that particular country can be called as a democratic country. If the public interest in the government and they choose their representative, they choose their person who make laws and who make decision on the behalf of them. This is democracy. So we considered the meaning of democracy in a limited and the descriptive sense. We have understood democracy as a form of government. We have understood, हम ये समझ चुके हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट का शासन करने का एक प्रकार है. क्लियर? सो जैसे कि राजतंत्र है और डिक्टेटरशिप है, वैसे ही डेमोक्रेसी है. मतलब कि किसी भी स्पेसिफिक कंट्री के अंदर उन लोगों के ऊपर कैसे शासन किया जाए, हाउ टू रूल द पीपल, दिस मेथड. So this method is a lot of ways. So a democracy is one of the method to rule on the people. So the most common form that democracy take in our time is that of representative democracy. A very common factor is it that the person, those who are the citizenship of a specific country, choose their representative because they are the voters. They are the legal voters for the eligibility, and they have eligibility to choose their representative, and the chosen representative went into the parliament and make laws on the behalf of their peoples and the welfare for the peoples. If peoples don't like that, they would change the government in a specific time period. Clear? If the condition is not gone rust. So in the countries we call democracy, all the people do not rule. In the countries we call democracy, जिन countries को हम democracy कहते हैं, उसके अंदर जो है वो people जो है peoples do not rule. जो कई बार लोग प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं करते हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव जो है वो रिप्रेजेंटेटिव उनकी तरफ से शासन करते हैं. So a majority is allowed to take decision on the behalf of all the people. Main thing is it majority. ज्यादातर लोग जिस पार्टी को, जिस दल को वोट देते हैं, वह दल पूरे देश के लोगों के लिए डिसीजन लेता है, खाली उन लोगों के लिए नहीं. बिकॉज दे आर नॉट स्पेसिफाइड और सिंपलिसाइज्ड. उनको चिन्हित नहीं किया जाता है कि उन लोगों ने मुझे वोट दिया इसलिए मैं उनके लिए ही नीतियां बनाऊंगा, इनके लिए पॉलिसीज बनाऊंगा, इनके लिए रूल बनाऊंगा, इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा. बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर और वॉट एवर द पोस्ट वी हैव टू डू द वर्क और एग्जीक्यूटिव politics, so that particular person is a responsible, particular person is accountable for whole the nation, not for a specific person. This gives us a clear but the minimal understanding of the democracy.
So if even if they could, a majority of are allowed to take the decision on the behalf of all the people, even the majority does not rule directly. The majority of the people rule through their elected representatives. This become necessary because, और ये आवश्यक हो जाता है कब, जब the modern democracy involves such a large number of people that is physically impossible for them to sit together and take collective decision. अब क्या होता है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे लोग जो है वो एक साथ मिलकर कहीं पर इकट्ठे होकर किसी डिसीजन तक पहुंचे, ये संभव नहीं है। और ज्यादा लोग होने पर जो है वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल जो है पार्टीज होती है और वे उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज को किसी एक स्पेसिफिक बिल पर राजी करना, उन लोगों को परसूट करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए it takes some time to make a conclusive decision, but it is better for us to take time, because if you are going to implement a specific law in a whole nation, that particular decision must be very careful, because a lot of intellectuals' mind will include in that decision. So it is very interesting, and it is a very specific and very specified feature of the democracy that a lot of people takes times to get conclusion. Clear? So even if they could, the citizen does not have the time, the desire or the skill to take the part in all the decision. अब क्या होता है कि संभव होने पर भी हर व्यक्ति यहाँ पर फैसला लेने के लिए, अगर उसकी इच्छा है तो फैसला लेने के लिए या तो योग्य नहीं है, उसके अंदर स्किल नहीं है, या उसके पास में जो है वो टाइम नहीं है, तो if the good citizen does not have the time, the desire or the skill to take part in all the decision, this gives us a clear but a minimal understanding of democracy. अभी जो दो अपन ने पॉइंट पढ़े हैं, एक तो फैसला लेने में देरी होती है और दूसरा कि ज्यादातर लोग जो होते हैं वो फैसला लेने के लिए समय, इच्छा या मनोइच्छा जुटा नहीं पाते हैं। तो इससे जो है वो डेमोक्रेसी की न्यूनतम समझ, न्यूनतम परिभाषा या न्यूनतम उसकी फीचर हमको समझ में आ जाता है कि डेमोक्रेसी में कैसे फैसले लिए जाते हैं। सो दिस क्लियरली हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसीज फ्रॉम नॉन डिस्टिंग्विश। अब ये जो छोटी सी परिभाषा है, इसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक है और कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है। पर डेमोक्रेसी, बट इट डज नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी। पर वो अच्छी डेमोक्रेसी है या फिर वो बुरी डेमोक्रेसी है, इस कंक्लूजन तक हम नहीं पहुंच सकते। इट डज नॉट allow us to see the operations of the democracy beyond the government. For this we need to turn to broader meaning of the democracy. इसलिए हमें जो है वो डेमोक्रेसी की एक स्पेसिफिक बॉर्डर परिभाषा चाहिए, एक डेमोक्रेसी की परिधि चाहिए, इसका सर्कमस्टेंसेस चाहिए कि कहाँ तक हम किस प्रिंसिपल, किस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड है। समटाइम्स वी यूज डेमोक्रेसी फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस अदर देन द गवर्नमेंट। जस्ट रीड दीज स्टेटमेंट्स। वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली एंड हम जो हैं, हमारा जो परिवार है वो एक लोकतांत्रिक परिवार है। मतलब हमारे परिवार के अंदर ऐसा इसमें क्यों कहा, व्हेनेवर डिसीजन हैज टू बी टेकन, जब भी कोई डिसीजन लिया जाना होता है तब we all sit down and arrive at a consensus। जब हम सब बैठते हैं और एक निश्चित निर्णय पर पहुंचते हैं। My opinion matter as much as my father's, so my opinion much as my father। अब किसी की डिसीजन जो है वो किसी से मिलती है, किसी की डिसीजन किसी से नहीं मिलती है। इस किसी के फादर से मिलती है तो उनका जो डिसीजन वो परसुएट करते हैं। आई डोंट लाइक टीचर्स, नेक्स्ट पॉइंट, आई डोंट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास। आई डोंट लाइक टीचर्स, मैं उन टीचर्स को पसंद नहीं करता वो जो
क्लास के अंदर बच्चों को बोलने का या क्वेश्चनिंग करने का अधिकार नहीं देते, राइट्स नहीं देते हैं। आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विद द डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट। उनको ऐसे टीचर पसंद है जो विद्यार्थियों की सहभागिता, विद्यार्थी भी इंक्लूड हो स्टडी के अंदर, ओनली वे लेक्चर देके चले जाए ऐसा नहीं, स्टूडेंट भी उनको क्वेश्चन करे, टीचर उनके साथ में इंक्लूड हो, किस टॉपिक पर वो बात कर रहे हैं। तो इस तरह से आप जो है वो उनके साथ में एक स्पेसिफिक बाउंडेशन रखेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो आप डेमोक्रेटिक टीचर नहीं है, आप एक डिक्टेटर टीचर है। क्लियर? सो ये दो एग्जाम्पल दिए, एक और है, वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर डिसाइड एवरीथिंग इन द पार्टी। एक लीडर है और उसकी फैमिली है, वो पार्टी के अंदर सारे फैसले ले रही है। हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी? तो फिर वो डेमोक्रेसी की बात कैसे कर सकते हैं? क्लियर? सो अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।